हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस, यानी यहाँ पर सोशल साइंस के जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इकोनॉमिक्स का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। और यहाँ कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम व्यू से जो ये क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट व्यू पे रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, poverty as a challenge, class 9 CBSE NCERT social science here. That's important book here, but next question arrive here, that's the most important. Explain the three way in which the poverty can be estimated in India. You know that's important here. Explain the poverty can be estimated in India. That's important. Here, three way asking here question. Will determine their poverty line in India a minimum level of the food requirement, clothing, footwear, fuel and the light, and educational and medical equipment, etc. are determined for the substance. You know that's important. There is a poverty lines in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and the light, and the education and the medical equipment. That's important here. You know that there is a three ways poverty can be estimated in India here. First of all here, the calories requirement depending upon to the age, sex, area and types of work in the way of the estimating poverty. Know that is important. There is the calorie requirement depending upon the age, sex, area and types of work in the way estimating of poverty. You know that second year average calorie requirement in India 2400 per person or per day. That's important. 2400 per person per day in a rural area and 2100 per person or per day in the urban area. That's important here. 2100 per person day in the urban area. Why? This is different here. You know that's important because the rural area people, there is a hard working, there is a minimum calories is a need here, is a 2400 per person, but urban area is a low work, there is a not about the hard working, there is a minimum here, average is a 2100 per person or per day urban area. That's important reason here. The next year, monetary expenditure per capita need is also a way of estimate of poverty. You know that is important. Monetary expenditure per capita needed is also a way of estimating poverty here. In the year 2000, poverty line for a person was fixed as a rupees 328 per month for the rural area and 450 for the urban area. That's important here. You know that there's an urban area here
और 454 because the city life here. But there is a rural area is here. A poverty line at 328 per month for the rural area. That's important here. In 2000, here poverty line is declared the Indian government. That's important. 328 only the rural area and 454 to urban area. Monthly income. That's not a fair. A uniform standard for poverty line is also used, which is given by the international organization like a World Bank. World Bank asking here the poverty line, this equivalent of $1 per person or per day. There is a World Bank has defined his poverty line. The World Bank defined the poverty line here per person per day $1 requirement. That's important here for the exam view. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं सामाजिक विज्ञान, और ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के 3 तरीक़े बताइए। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के तरीके हमें बताना है कि भारत में हम गरीबी का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम व्यू से। और आपको तो पता ही होगा कि जनरल सी बात है कि हर एक इंसान की 3 ही मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। कहते हैं जिनको ये सब मिल गया वो पॉवर्टी लाइन में नहीं देखे जा सकते। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये अनुमान लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, रोशनी, शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो चलिए एक साइंटिफिक रीजंस है। यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन के अंतर्गत यहाँ दिखाया गया है कि भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और रोशनी और शैक्षिक चिकित्सा आवश्यकता आदि न्यूनतम स्तर पर इसमें निर्धारित की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के तरीक़ों का है यहाँ पर हम चर्चा करने हैं, तो हमारा यहाँ कुछ पॉइंट है जिसके अंतर्गत आप इसको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। देखा जाए तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए हम उम्र, लिंग, क्षेत्र और काम के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता गरीबी का अनुमान लगाने के तरीका होता है। हमने ये निर्धारित किया है कि उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और क्षेत्र और काम के हिसाब से कितने व्यक्तियों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होता है, तो उससे हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो है कैलोरी दिन में पर डे हिसाब से जो है ढंग से नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो जनरल सी बात है वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होगा। अगर आप स्वयं भी नहीं खाते हो तो वो भी आप गरीब ही हो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जितना कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है वो लेना ही जो है इम्पोर्टेंट होता है। और ये कैलोरी निर्धारित हम कर सकते हैं। यहाँ पर भारत में औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और यही शहरी क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर 2100 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब यहाँ पर समझ में आपको ये नहीं आ रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक और शहरी क्षेत्र में कम क्यों। तो इसका साफ आंसर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो मेहनती काम अधिक करते हैं, क्योंकि उनका कोई भी काम होता है मेहनत से भरा पड़ा होता है, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता मानी जाती है। और भारत में औसत कैलोरी की जो है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 है, और ये कई बार MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और शहरी क्षेत्र में कम इसलिए है क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग जो है घर में सोते हैं और घर से उठते हैं और गाड़ियों में ही जाते हैं। इनका जीवन भागम भाग तो रहता है लेकिन सब मशीनों के अंतर्गत होता है, तो इनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी जो है निर्धारित की गई है, और भी प्रति व्यक्ति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 प्रति व्यक्ति
कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है, और वही शहरी क्षेत्र में 2100 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये MCQ के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखें तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के एक और भी तरीका है कि प्रति व्यक्ति आवश्यक मौद्रिक व्यय भी गरीबी का अनुमान लगाने का तरीका है। यानी प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय कि कितना पैसा हम व्यय करते हैं, तो ये भी एक अनुमान लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका है। आगे देखते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। आगे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कहते हैं वर्ष 2000 में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 328 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 454 रुपये प्रति माह तय की गई थी। अब देखिए ये अनुमान लगाने का सबसे बेस्ट तरीका था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति गरीबी रेखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई थी कि 328 रुपये, जो व्यक्ति ग्राम में रह के 328 रुपया कमा रहा है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, लेकिन 328 या कहते 329-30 तक पहुंच जाता है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आकलन की जाएगी। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर 328 रुपया की क्या कीमत होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कुल जनसंख्या के अंतर्गत निकाली गई है, इसलिए आपको 328 रुपया यहाँ पर बहुत ही कम दिख रहा होगा। क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या होती है देखिए इसका आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके घर में 5 व्यक्ति हैं लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है, तो ये जो कमाने वाला व्यक्ति है उसका इनकम जो है 5 भागों से डिवाइड होगा। यानी जितना कमाता है वो सारे पैसे रखिए और उसको 5 से डिवाइड कीजिए, और जो भी पैसा आता है वो प्रति व्यक्ति आय होगा। क्योंकि जो नहीं कमा रहे होते उनका भी आकलन की जाती है। और इसका जो सरकार ने 328 रुपया जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित की गई है, तो ग्राम में जितने व्यक्ति रहते हैं उनको ग्राम में जितने पैसे हैं उनको डिवाइड करके जो है 328 रुपया यहाँ निकला है। तो ये है कि 328 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तय की गई है। और वही शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो इसकी आकलन थोड़ी अधिक है, यहाँ 454 रुपये प्रति माह के तय की गई है। ये सब देखना और समझना बड़ा ही आसान है, लेकिन यह कन्फ्यूज़न भी रहती है। आप सोचते हो कि 454 रुपया कौन कमाता होगा आज के समय में महीने का, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े एक व्यक्ति से नहीं निकाली जाती है, सरकारी आंकड़े पूरी जनसंख्या के साथ निकाली जाती है, तब जाके ये आता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि ये 328 रुपया क्यों बताया गया है। 328 रुपया जो है पूरी जनसंख्या से जो है डिवाइड करके ग्रामीण क्षेत्र के निकाले गए हैं, और पूरे शहरी क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उनके जितने पैसे होते हैं जो सरकार को दिखता हो। और ये पैसे दोस्तों वो होते हैं जो सरकार को दिखते हैं, ये नहीं कि आप जो घर में रखे रहते हो पैसे उसका कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता है। तभी सरकार कहता है घरों में मत पैसे रखिए, तभी तो आए दिन जो है मंत्रियों पर देखते ही रहते हो छापे लगते रहते हैं कि ये लोग जो है पैसों को दबा लेते हैं, घरों में पेटियों में बंद कर देते हैं, जिनके कारण हम इसकी सही आंकड़ा हम नहीं लगा पाते हैं, पैसे एक दो जगह ही सिमट के रह जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय होगा या पर गरीबी रेखा होगा, सब इन्हीं पैसों से निर्धारित होती है जो बैंकों में या सरकार के नज़र में होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ समझ गए होंगे। अगर हम अगली और अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि गरीबी रेखा के लिए एक सामान्य मानक के भी प्रयोग किया जाता है जो विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया था, और ये था प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1 की बराबर है। यानी देखिए यहाँ पर विश्व बैंक ने हमें गरीबी रेखा के लिए एक सामान्य मानक दिया था कि जो व्यक्ति पर डे $1 से कम रुपया कमाते हैं वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, और जो व्यक्ति $1 से अधिक कमाते हैं या $1 कमाते हैं वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। अब यहाँ पर ये भी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ $1 तो देखा जाए तो 64 या 65 या 70 रुपया तक हो सकता है। तो एक दिन में अगर बंदा 64 रुपया कमाता है तो उसको अपना जीवन यापन कैसे होगा। तो इस बात को आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, तो एक जो है एक दिन में अगर 500 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 100 रुपया आ गया। तो एक यानी पर डे एक व्यक्ति का जो है 100 रुपया हुआ।
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 रुपया भी नहीं कमा रहा हो, कम कमा रहा हो, तो यहाँ पर 64 रुपया जो है एवरेज लिया गया है, क्योंकि हम पूरी नहीं देखते हैं। कोई बंदा एक दिन में लाखों रुपया कमाते हैं, कोई 500 भी नहीं होते, कोई 300 भी कमाते हैं। तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो यहाँ बताया गया है, प्रति व्यक्ति $1 के बराबर माना गया था, जो ये अंतर्राष्ट्रीय हमें जो है विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक ने साफ शब्दों में बताया था कि जो व्यक्ति पर डे $1 से कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, और जो $1 के बराबर कमाएंगे वो गरीबी रेखा के ऊपर होंगी। तो जर्नल सी बात है, और ये जो है लोग घर में जितने सदस्यों की संख्या है उससे डिवाइड करके ये निकाली गई है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो MCQ के अंतर्गत आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और नोट भी कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो जर्नल सी बात दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने के साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, तो दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों को केयर होगा। और तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे जो 9th क्लास में है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सही ज्ञान हो और आगे आप सही के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि आज मुझे पता है कि आज बहुत जो है भागम भाग इस दुनिया में लगी हुई है, तो यहाँ पर समझदार बनना और जो है अच्छा बनना काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए शेयर की भावना आपको ज़रूर होना चाहिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना होता है। जिनको देखना होगा देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी हो तो आप ज़रूर बहुत से जो है मित्रों के कॉन्टैक्ट अपने पास रखे होंगे, व्हाट्सएप होगा, तो वो जनरल सी बात है, जब स्टेटस पे लगाओगे तो आपके मित्र भी जो है वो खोल के देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो रहेंगे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। नहीं अच्छा लगेगा तो क्विट कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर पहली बार मेरे पास चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो चीज़ अच्छा लगे उसको सेव कर लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बाद में शायद प्राप्त भी ना हो। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।